وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ہم سورۃ قیامہ کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان نے سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک قوت رکھی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو وہ ملامت کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اردو میں ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ اس کے اندر بدیت کرتی ہے. اسی طرح ایک اور نفس ہوتا ہے جس کو جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نفس اطمینان پاتا ہے. اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر ایک اور نفس ہوتا ہے جو اس کو خباثت پر آمادہ کرتا ہے، شرارتوں پر آمادہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر آمادہ کرتا ہے. ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ایسا نفس جو کہ برائی پہ ملامت کرے، یہ نفس لوامہ ہی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دی جائے گی. میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور تک دوبارہ درست بنا دیں. جو اللہ پہلی دفعہ بنا سکتا تھا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ آج آپ کے پاس ایک چیز آپ تیار کرتی ہیں، فوٹو کاپی مشین کے ذریعے اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں آپ کاپی تیار کر لیتی ہیں. آپ نے انسان اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو یہ سب سکھا دیا ہے، اب کیوں سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا؟ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور درست بنا دیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مزید بدعمالیاں کرتا رہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اس کے تو ہزار ہاتھ دلائل اس کے سامنے موجود ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو فوٹو کاپی کی مثال، انسان یہ کام کر لیتا تو اللہ کیوں نہ کرے گا؟ اصل بات ہے انسان قیامت کو ماننا نہیں چاہتا. کیوں ماننا نہیں چاہتا؟ وہ منمانی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات
पूरी करना चाहता है। जब इंसान क़यामत पर ईमान ले आता है, उसको अपनी ख्वाहिशात पर बंद बांधना पड़ता है। इंसान ये बंद नहीं बांधना चाहता, वो शूटर में मुहार फिरना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ऐसा करने से वो अपना ही नुकसान कर रहा है। और अगर वो क़यामत पर ईमान ले आता है और अपनी ख्वाहिशात पर के आगे रोक जमा करना और जबान से पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। जब हम इसे पढ़वा चुके तो फिर आप उसको उसी तरह पढ़ें और फिर हमारे ही जिम्मे इसका बयान कर देना है। जब इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी तो आप उस वही को साथ साथ याद कर लेते थे और इसमें आपको मुशक्कत भी होती थी। अल्लाह ताला ने आपको बताया कि जब हजरत जिब्रील वही लेकर आए, आप सिर्फ वही को सुनते रहिए। आप ये फिक्र ना कीजिए कि ये वही मुझे याद नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वही आपके दिल में महफूज हो जाए। तो जब वही आ रही हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था सिर्फ इसको सुने, गौर से सुने। इसको आपके किसी कौम ने इजाद नहीं किए। तमाम ऐसे रावी जिनका जिक्र हदीस में किसी न किसी हवाले से आया, उन तमाम के हालात जिंदगी पर मुश्तमिल इतनी बड़ी किताबें हैं जिनकी 30 जिल्दें हैं और इस इल्म को कहते हैं अस्मा और रिजाल। ये तमाम रावियों के हालात जिंदगी आज भी मौजूद है। आज भी कोई शख्स चाहे तो इन सारी चीजों को छान फटक कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने न सिर्फ कुरान की हिफाजत की के असबाब पैदा कर दिए, बल्कि हदीस की हिफाजत के असबाब भी पैदा कर दिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खुद जिम्मेदारी उठाई थी। आप इस वही को जल्दी याद करने लेने के लिए अपनी जुबान को हरकत न दीजिए। इसको हमारी जिम्मेदारी है इसको जमा करना और इसको पढ़ा देना। जब हम इसको पढ़वा चुके तो आप उसी तरह कुरान पढ़ा करें और फिर इस हमारी जिम्मेदारी है कि उसका ठीक ठीक मतलब और उसका बयान भी समझा दें। हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो दुनिया से मोहब्बत करते हो और तुम आखिरत को छोड़ देते हो। कई चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। जैसे क़याम हदीस में आता है कि तुम अपने रब को क़यामत वाले दिन ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो और तुम्हें देखने में कोई दिक्कत ना होगी। वो अपने रब को देख रहे होंगे और कई चेहरे उस दिन परेशान होंगे। वो ख्याल करेंगे कि अब उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला होगा। हरगिज नहीं। जब जान हंसली की हड्डियों तक पहुंच जाती है और कह दिया जाता है कोई दम झाड़ करने वाला, और मरने वाले को यकीन हो जाता है कि अब तो जुदाई है और उसकी एक पिंडली दूसरी पिंडली से जुड़ जाती है, उसे यकीन होता है कि अब तो तेरे रब की तरफ ही चलना है, तो उस शख्स ने ना तो तौहीद की तस्दीक की, ना नमाज अदा की, लेकिन उसने वही को जुठला दिया और मुंह मोड़ लिया। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। तेरे लिए बर्बादी है, तेरे लिए बर्बादी है। ये आयात अबू जहल के बारे में उतरी। उसके किरदार की नक्शा कशी की गई। उसने अल्लाह की आयत सुनने के बाद ये तर्ज अमल इख्तियार किया और यूं अपने घर को चला गया जैसे उसने वो आयत सुनी ही ना थी। तेरे लिए बर्बादी हो और तेरे लिए बर्बादी हो, फिर तो तेरे लिए बर्बादी है, फिर तेरे लिए बर्बादी है। क्या इंसान ने ख्याल कर रखा है कि उसको शुतर बेमुहात छोड़ दिया जाएगा, कोई उसे हिसाब न लेगा? क्या वो एक नुतफा न था मनी का जो कि टपकाई गई थी, फिर वो एक लोथड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, फिर उसे एक दुरुस्त और ठीक इंसान बना दिया, फिर उससे मर्द और औरत की 2 किस्में बना दी। क्या ये अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा करे और इनकी करतूतों का हिसाब ले? अल्लाह इस बात पर जरूर कादिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह दहर। क्या इंसान पर जमाना से एक वक्त ऐसा नहीं आया जबकि वो कोई काबिल चीज न था? हमने इंसान को मर्द और औरत के मखलूत नुतफा से पैदा किया ताकि हम उसे आजमाएं। दहर जमाने को कहते हैं, इब्तदाई कायनात से लेके इख्तिताम तक का जमाना, इसे दहर कहते हैं। असर ऐसे जमाने को कहते हैं ये जो जमाने का कुछ हिस्सा, मसलन एक सेकंड पहले जो वक्त था अब वो चला गया, ये जो गुजरता वक्त है इसको असर कहते हैं। तो इंसान पर एक वक्त ऐसा ना आया था
अपनी जिंदगी से पहले, जबकि वो कोई काबिल जिक्र शय नहीं था। अब हमारी नस्लें जिन्होंने लाज़मन इस दुनिया में आना है, आज इस वक्त वो कुछ भी नहीं है। हमने फिर इंसान को अदम से वजूद में लाए और माँ और बाप के नुत्फे से, मिले हुए नुत्फे से हमने उसको पैदा किया और हमने उसको आजमाइश के लिए पैदा किया, और इस आजमाइश के लिए हमने उसको कान और आंखें दे दी, हमने उसको सुनने और देखने वाला बना दिया, और हमने उसको सीधी राह दिखा दी, या तो शुक्र करने वाला बन जाए या कुफर करने वाला बन जाए। अल्लाह ताला ने ये कान, आंखें और दिल इसलिए दिए थे ताकि इंसान अल्लाह की हिदायत को पहचान कर उसको इख्तियार कर सके। हमने न मानने वालों के लिए जंजीरें, तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग शराब के ऐसे जाम पिएंगे जिनमें काफूर की आमेज़श होगी। वो एक चश्मा होगा जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे और जहां चाहेंगे उसको बहा ले जाएंगे, उसकी शाखें निकाल लेंगे। वो नेक बंदे जिन्हें ये शराब दी जाएगी वो अपनी नजर को पूरी करते हैं और ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर सू फैली हुई होगी। जो शख्स नजर पूरी करता है वो जाहिर है उसे अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह से किए हुए वो वादे को पूरा करता है। तो ऐसे लोग अल्लाह पे यकीन रखने वाले होते हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नजर मानने से मना करने लगे और फरमाने लगे कि वो किसी होने वाली चीज को फेर नहीं सकती, हाँ उसके जरिए से कुछ माल बकील के जरिए निकलवा लिया जाता है। नजर अल्लाह के साथ शर्त होती है, अल्लाह मेरा ये काम कर दिया तो मैं ये नेकी करूंगा, तो अल्लाह के साथ शर्तें करके नेकी करने की बजाय वो नेकी पहले कर दीजिए, पहले नफल पढ़ लीजिए, पहले सदका कर दीजिए और अल्लाह से कहिए अल्लाह मेरी ये नेकी कबूल फरमा और ये मेरी मुश्किल आसान फरमा। ये नजर से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नजर के साथ कोई तकदीर में तब्दीली नहीं होती। हाँ बखील से कुछ माल निकलवा लिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने इसको मना करना चाहा लेकिन फिर मना ना किया और सिर्फ उसकी हकीकत को वाज़ेह कर दिया। वो नजर को पूरा करते हैं और कयामत के दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर सू फैली होगी, और वो अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ जन्नती लोगों की 3 सिफात बताई गई। सबसे पहली सिर्फ उन्हें अल्लाह पे यकीन होता है, इसीलिए तो नजर पूरी करते हैं। नंबर 2 वो कयामत के दिन से डरते हैं और अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि हम तुम्हें ये सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना तो कोई बदला चाहते हैं ना शुक्र गुजारी चाहते हैं। असल बात यह है कि जब इंसान किसी पे सदका करे, किसी के साथ नेकी करे और दिल में ये नियत हो कि मुझे वो मेरा शुक्रिया अदा कर दे, मेरा एहसान मंद हो, अगला शख्स एहसान मंद हो गया, उसने शुक्रिया अदा कर दिया, आपका सदके का बदला तो हो गया। अब आप अल्लाह से बदला किस चीज के लिए चाहते हैं? इंसान अगर अल्लाह से बदला चाहता है तो सिर्फ खालिस अल्लाह की रजा उसको चाहिए। अगर वो उसका बदला उसकी एहसान मंदी चाहेगा या अगले की शुक्रगुजारी चाहेगा तो मामला तो बराबर हो गया। लिहाजा जो सदका करना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, उससे नियत खालिस अल्लाह की रजा की होनी चाहिए। हमारी नियत आम तौर पे तबादले की होती है या नहीं होती? तबादला हो गया, अजर खत्म। बात मेरी समझ आ गई? वो लोग अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं, हम तुम्हें से इसका बदला नहीं चाहते और ना ही शुक्रगुजारी चाहते हैं। हम अपने रब से ऐसे दिन से डरते हैं जो चेहरों को करीब और दिलों को मुस्तिर कर देगा। तो अल्लाह ताला ने उनको इस दिन की बुराई से बचा लिया, यानी क़यामत के दिन की बुराई से, और उन्हें ताजगी और सरूर बख्शा और सबर के बदले उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास से नवाजा। वो जन्नत में तख्तों पर तकिए लगाए होंगे, वो ना तो वहां धूप देखेंगे और ना ही यह की सर्दी देखेंगे, और उनके ऊपर साए झुके होंगे और उनके खोशे
ان के मुकम्मिल तौर पर ताबे फरमान बना दिए जाएंगे। जन्नती कोई फल खाना चाहेगा, खोशा उसके पास खुद झुक कर आ जाएगा और वो खुद खोशे से फल तोड़ के खा लेगा। और उनके ऊपर चांदी के बर्तन और शीशे के सागर फिराए जाएंगे। वो शीशा चांदी से बना होगा और उन्हें खास तरकीब से बनाया गया होगा। उन्हें वहां शराब के जाम पिलाए गए जाएंगे जिसमें सूंड की आमेज़श होगी। जंजबील कहते हैं, अदरक को सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद उसको जंजबील कहते हैं। पीछे आपने पढ़ा कि उनको ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिसमें काफूर होगा। काफूर के साथ ठंडे असरात होते हैं जबकि जंजबील के साथ गर्म असरात होते हैं। वैसे भी अरब लोगों को जंजबील का कावा बड़ा पसंद है। आज भी किसी अरब घराने में चले जाइए, सबसे पहले वो आपको जंजबील का कावा छोटे छोटे फिंजानों में पिलाते हैं, बड़ा तेज होता है। हम लोग तो एक घूंट भी नहीं पी सकते। बहरहाल वो उसको बड़े शौक से पीते हैं। और वो जन्नत में ऐसे शराब के जाम उन्हें पिलाए जाएंगे जिसमें जंजबील की आमेज़श होगी। ये जन्नत में एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा और उनके पर लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो कि हमेशा ही लड़के रहेंगे। या तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी उम्र हमेशा एक ही रहेगी, या इसका मतलब है कि वो इनकी हमेशा ही खिदमत करते रहेंगे, कभी भी अपने काम से में कोताही न करेंगे। और जब तो उनको देखेगा तो उनको ख्याल करेगा कि वो बिखरे हुए मोती हैं। तो जन्नतियों के जो खादिम होंगे वो इतने खूबसूरत होंगे कि वो चलते फिरते यूं लग रहा होगा जैसे बिखरे हुए मोती हैं। अंदाजा कीजिए जिनके मुलाजिम बिखरे हुए मोतियों की तरह हो, जगमग कर रहे होंगे, वो जन्नती खुद कितने जगमग कर रहे होंगे। और फिर जन्नती औरतें, उनके बारे में सिर्फ एक बात बताकर मैं आगे चलती हूँ क्योंकि मेरा टाइम मुझे इजाजत नहीं देता। हदीस में आता है कि जन्नती औरत का दुपट्टा दुनिया व माफीहा की सारी नेमतों से ज्यादा कीमती है। और जन्नती औरत अगर दुनिया में एक दफा झांक ले तो सारी दुनिया को रोशन कर दे। वो जब तो उन्हें देखेगा तो तुम ख्याल करोगे कि वो बिखरे हुए मोती हैं। तुम जब देखोगे, जहां देखोगे, बहुत सी नेमतें होंगी, बहुत बड़ी बादशाही होगी। जो आखिरी जन्नती है अल्लाह ताला उसको भी 10 दुनियाओं के बराबर अता फरमाएंगे। ये अल्लूमुल मरजान की हदीस है, किताबुल ईमान में आप चाहें तो जाकर पढ़कर देख लीजिएगा। हदीस नंबर 117। जन्नत में आखिरी जाने वाला जो शख्स होगा उसको अल्लाह ताला 10 दुनियाओं के बराबर अता फरमाएंगे। तो तू जहां देखेगा, जब देखेगा, हर जगह पे नेमतें होंगी अल्लाह ताला की और बहुत बड़ी बादशाही होगी। अंदाजा कर लीजिए कि जब आखिरी जन्नती के लिए अल्लाह ताला ने इतनी वसी सल्तनत रखी होगी, तो जो ऐसे जन्नती हैं जो कि साबिकून में से हैं, जो ऊपर वाली जन्नतों के हकदार होंगे, उनको अल्लाह ताला ने फिर किस हद तक जन्नत में से अता फरमाया होगा। और उनके ऊपर बारीक रेशम के और मोटे रेशम के सब्ज रंग के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। ये तुम्हारा बदला है और तुम्हारी कोशिश की कदरदानी की गई है। वो रब कितना कदरदान है। इंसान इस दुनिया में नेकी करता है, इस दुनिया के फायदे भी उसे हासिल होते हैं। यहाँ अपने रब की रहमतों से लुत्फानंदोज होता है, उसे यहाँ पे एक पाकीज़ा जिंदगी मिलती है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जन्नतों में अल्लाह की कितनी कदरदानी फरमाएंगे। वो रब वाकई बड़ा करीम है। इंसान वो बदकिस्मत है जो इतने करीम रब की मेहरबानियों से फायदा ना उठाए, जो इतने करीम रब की फरमाबरदारी ना करे और अपने आप को बदबख्त बना ले। बेशक ये तुम्हारे लिए जल्द बदला है और तुम्हारी कोशिश की कदरदानी की गई है। ए नबी, हमने आप पर ये कुरान थोड़ा थोड़ा करके नासिल किया और आप अपने रब के हुक्म के मुताबिक सब्र कीजिए और उनमें से किसी गुनाहगार या किसी नाशुक्रे की बात न मानिए जो आपसे कुछ लो और कुछ दो के असूल पर मफाहमत करना चाहते हैं। अपने रब का नाम सुबह और शाम याद कीजिए, रातों को भी अल्लाह के हजूर सजदा कीजिए और रात के तवील औकात में अल्लाह की तस्बीह कीजिए।
उन मसाइब और मुश्किलात पर सब्र करने के लिए जो कि दीन की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को पेश आ रहे थे, उन मसाइब पर सब्र करने के लिए जो इस्तकामत दरकार है वो नमाज और जिक्र इलाही के जरिए मुयस्सर आएगी। हमें भी हुक्म है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मुसीबतें आए तो मदद कहाँ से लेनी है? नमाज और सब्र के साथ। और रातों को भी सजदा करो और उसकी लंबी रात तक तस्बीह कीजिए। ये लोग दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और जो भारी दिन आने वाला है कयामत का, उसे अपने पीछे छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं। हमने इनको पैदा किया, हमने इनके जोड़ बंद मजबूत किए, जब हम चाहें तो हम इनकी जगह पे ऐसे ही लोग और ले आएंगे। क्या ख्याल है, वो अल्लाह नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है। और ये कुरान तो एक नसीहत है, तो जो शख्स चाहे वो अपने रब की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार कर ले। और तुम नहीं जा सकते मगर वही जो अल्लाह चाहता है। यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। वो जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल करेगा और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इंसान की अपनी चाहत ही सब कुछ नहीं होती जब तक कि अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना हो। और अल्लाह ताला की चाहत कोई अंधेर नगरी नहीं है कि अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को भी दीन की तौफीक देते। अल्लाह ताला चूंकि अलीम है, खबीर है, लिहाजा अल्लाह ताला अपने ये नेकी की तौफीक सिर्फ उन लोगों को देता है जिनके बारे में वो इल्म रखता है कि वो अल्लाह के रास्ते की तड़प रखते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते की मोहब्बत रखते हैं। तो अल्लाह ताला ये तौफीक अपने ऐसे ही बंदों को अता फरमाता है जो कि अल्लाह के तरफ जाने के लिए तकवे की नियत और इरादा, तड़प, मोहब्बत रखते हैं। और तुम नहीं जा सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला तो जानने वाला और हिकमत वाला है, वो जिसे चाहेगा अपनी रहमत में दाखिल कर देगा और हदायत अता फरमा देगा। लेकिन जो शख्स जालिम होगा उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरत मुरसलात पढ़ रहे हैं। वल मुरसलाति उर्फन फल आसिफाति अस्फन वन नाशिराति नशरन फल फारिकाति फरकन फल मुल्कियाति जिक्रन उज़रन औ नुज़रन इन्नमा तुअदून लवाक़ि। उन हवाओं की कसम जो कि नरमी से चलती हैं, फिर जोर पकड़कर झक्कड़ बन जाती हैं, आंधी बन जाती हैं, बादलों को उठाकर फैला देती हैं, फिर उनको फाड़कर जुदा कर देती हैं, फिर दिलों में अल्लाह की याद डाल देती हैं। उज़र से या डराने की सूरत में जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो जरूर वाक़ई होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने 5 कसमें कयामत की हकीकत बयान करने के लिए खाई हैं, गोया के जो आका तुम्हारे लिए और तुम्हारी जिंदगी के बचाव के लिए उसने हवाओं का इतना जबरदस्त निजाम जारी किया हुआ है, क्या वो कयामत बपा नहीं कर सकता? कभी तो हवाएं नरमी से चल रही होती हैं, कभी आंधी बन जाती हैं, कभी वो अल्लाह की तरफ से उसका अजाब ले आती हैं और दिलों में इंसान के नसीहत डाल देती हैं। बहाने बहाने से इंसान के दिल में अल्लाह की याद, कभी बारिश की उम्मीद डालती हैं, कभी अजाब का डर डालती हैं। तो इन तमाम हवाओं के निजाम को कौन सी हस्ती कंट्रोल कर रही है? अल्लाह वहदहु ला शरीक। तो जो इन हवाओं के निजाम को कंट्रोल कर सकता है वो क़यामत क्यों नहीं ला सकता? तुम जिस चीज का वादा दिए जाते हो क़यामत का, वो होकर रहेगा। जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, आसमान फाड़ दिया जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएंगे, और जब पहाड़ रसूलों को एक वक्त मुकर्रा पर हाजिर कर दिया जाएगा, किस दिन के लिए देर की गई? फैसले के दिन के लिए। तू क्या जाने फैसले का दिन क्या है? ये फैसले का दिन क़यामत का दिन है। उस दिन जो क़यामत को जुठलाते हैं उनके लिए तबाही है। क्या हमने तुमसे पहले लोगों को हिलाक नहीं किया? फिर हमने उनके पीछे आने वालों को उनके पीछे नहीं लगाया? आज तुम क़यामत को कब जुठला रहे हो जो तुमसे पहले क़यामत को जुठलाते थे? तारीख से सबक सीखो। पुरानी कौमें जिन्होंने क़यामत को न माना, हमने उन्हें हिलाक नहीं कर दिया? तुम उनके नमूने हर वक्त देखते रहते हो।
اور उसके बाद हमने उनके बाद वालों ने जब क़यामत को झुठलाया तो हमने उनको भी बर्बाद कर दिया। हम इसी तरह मुजरिमों के साथ किया करते हैं। उस दिन क़यामत को झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। क्या हमने तुम्हें एक हकीर सा पानी से नहीं पैदा किया, नुत्फे से, फिर हमने उसको एक महफूज जगह माँ के पेट रहम में रखा, एक मुकर्रर वक्त तक हमने अंदाजा लगाया, और जब हमने समझा कि ये बच्चा अब इस दुनिया में अकेला रह सकता है तो हमने उसको दुनिया में भेज दिया। हमने एक अंदाजा लगाया, तो हम कैसे अच्छे अंदाजा लगाने वाले हैं। दोज़ख तबाही है उस दिन क़यामत को झुठलाने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने क़यामत की तस्दीक के लिए हमें पहले तारीख से मिसाल पेश की। जिन कौमों ने क़यामत को झुठलाया हमने उनको बर्बाद करके रख दिया, और तुम उनके इलाकों को रोजाना देखते हो। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर से मिसाल दी, हम कैसे एक बच्चे को एक पानी के कतरे से पैदा कर देते हैं। जो अल्लाह इंसान को पानी के कतरे से पैदा करके पहाड़ जैसी मजबूती दे देता है, वो क्यों क़यामत न लाएगा। और फिर तीसरी अल्लाह ताला ने कायनात से मिसाल दे दी, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, वो तुम्हारे मुर्दों को भी समेटती है, तुम्हारे जिंदों को भी। और हमने उसमें बुलंदबाला पहाड़ डाल दिए, और हमने तुम्हें ठंडा पानी मीठा पानी पिला दिया। जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतने बड़े पहाड़, बारिश के इतने बड़े इंतजामात के जमीन के 2/3 हिस्से को समंदर के वाटर टैंक्स बना दिया, वो अल्लाह क़यामत क्यों नहीं ला सकता। तुम्हारी मत क्यों मारी गई है, क्यों तुम्हें ये बातें समझ नहीं आती। तो तबाही है उस दिन क़यामत को झुठलाने वालों के लिए। चलो उसी की तरफ चलो जिसको तुम झुठलाया करते थे। तुम इस साये की तरफ चलो जो कि 3 शाखों वाला है, ना तो वो ठंडी छांव होगी और ना वो शोले से बचाएगा। दोज़ख में से बहुत बड़ा सा धुआं निकल रहा होगा, तुम उसी की तरफ चलो। चलो तुम्हें दोज़ख अभी दिखाते हैं। वो उसका साया ना तो ठंडा होगा और ना ही वो गर्मी से बचाएगा। उस दोज़ख में वो दोज़ख इतने बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी जैसे कि महल होते हैं। कोयले जब जलते हैं उनमें से चिंगारियां निकलती हैं। दोज़ख में जब आग दहकेगी तो उसमें से, चूंकि बड़ी आग होगी, बड़े बड़े दरख्त उसमें डाले जाएंगे, तो लिहाजा उसकी चिंगारियां भी महलों की तरह बड़ी बड़ी होंगी। गोया के वो जर्द रंग के ऊंट हैं। उस दिन तबाही है क़यामत को झुठलाने वालों के लिए। ये वो दिन होगा जिस दिन वो बात भी ना कर सकेंगे, ना ही उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो कोई उज़र पेश कर सकें। उस दिन क़यामत को झुठलाने वालों के लिए तबाही है। ये फैसले का दिन है। हमने तुमको और तुमसे पहले सब लोगों को जमा कर दिया है। आज तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई चाल है तो चल के तो देखो। दुनिया में तो तुम हम ठोक कर हक के दुश्मन बन गए थे, मेरे अंबिया के खिलाफ साजिशें करते थे, नेक बंदों पे जुल्म करते थे। आज तुम सब मुजरिम इकट्ठे हो, आज भी कोई साजिश तैयार करके देख लो ताकि तुम कम अज कम अपने आप को जहन्नम के अजाब ही से बचा लो। आज कोई तुम्हारे लिए चाल है तो चाल चल के देखो। उस दिन तबाही है झुठलाने वालों के लिए। बेशक मुत्तकीन सायों में होंगे, चश्मों में होंगे, मेवे होंगे जिसको वो पसंद करेंगे। खाओ पियो मजे उड़ाओ उन अमाल के बदले जो तुम दुनिया में करते रहे। हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। उस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही है। खाओ और मजे उड़ाओ थोड़े से, बेशक तुम मुजरिम हो। पहले वाली आयत नेक लोगों के लिए और ये वाली आयत गुनाहगारों के लिए। तुम दुनिया का थोड़ा सा मजा उड़ा लो, तुम तो मुजरिम हो। तबाही है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। जब इन लोगों को कहा जाता था अल्लाह के हजूर झुक जाओ, ये ना झुकते थे। यहाँ झुकने से मुराद सिर्फ नमाज अदा करना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के आगे सर झुका देना है। ऐसे लोगों की एक सजा ये भी होगी कि क़यामत को जब मोमिनों को सजदा करने का हुक्म होगा तो मोमिन तो सजदा में गिर जाएंगे, मगर उस दिन ये चाहने के बावजूद सजदा ना कर सकेंगे। उस दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेंगे और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे फौरन सजदे में गिर जाएंगे। उस वक्त
काफिर, नाफरमान, गुनाहगार लोग भी सजदे में गिरना चाहेंगे, लेकिन उनको तौफीक नहीं दी जाएगी, उनकी कमरें अकड़ जाएंगी और वो चाहने के बावजूद भी सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में सजदे करने की तौफीक अता फरमा ताकि हम क़यामत को भी तुझे सजदा कर सकें। अल्लाह ताला हमें इन बदबख्तों में से ना बनाना। अल्लाह ताला हमें खालिस ईमान और खालिस यकीन और खालिस अमल की तौफीक अता फरमा। उस दिन तबाही है जुठलाने वालों के लिए, तो इस कलाम के बाद यानी कुरान मजीद के बाद वो किस चीज पर ईमान लाएंगे? अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان